Hello students, welcome to EduSwitch, your online learning platform. I am Yogesh Shukla, your maths mentor. Today we are going to discuss about linear equation in two variables. These topics are also known as system of linear equations and simultaneous linear equations. I am sure if you watch the full video, you find the concepts are really easy. अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि ये concepts बहुत ही easy है. So, I have a puzzle for you. I have a basket and there are some apples and oranges in it. And the total number of fruits in the basket are 10. मैंने आपको बोला कि इस basket में total number of fruits 10 हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने apples and कितने oranges होंगे? No, it's not possible because it can be 1 apple, 9 oranges, 2 apples, 8 oranges, 7 apples, 3 oranges and so on. Okay, there are some more information I give you. अब मैंने आपको बोला कि there are 4 more apples than oranges. आपके पास oranges से 4 ज़्यादा apples हैं. So first method you apply hit and trial method. So what answer you get? You get there are 7 apples and 3 oranges. The answer is correct. But if you represent these conditions mathematically, so what would you get? You get apples plus oranges is equals to 10 because the total number of fruits are 10. And second condition, there are 4 more apples than oranges. So the equation is apple minus oranges gives 4. तो अब आपके पास यहाँ पर 2 equations form हो रही हैं. Now take the number of apples as x and number of oranges as y. So what you get? You get x plus y gives 10 and x minus y gives 4. In algebraic method, you have to write the linear equations first. So first equation is x plus y is equals to 10. Equation number 1. What you get second equation? तो second equation थी हमारी x minus y is equals to 4. Equation number 2. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि there are 2 unknown quantities in equation number 1 as well as equation number 2. तो आपको इन्हें represent करना होगा in one quantity. तो second equation है x minus y is equals to 4. If you transpose the value of y in RHS, what you get? You get x is equals to y plus 4. अगर आप y की वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू y plus 4 आपके पास आ जाएगी और इस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. प्लेस द वैल्यू x is equals to y plus 4 in equation 1. इक्वेशन 1 में आपको x is equals to y plus 4 की वैल्यू प्लेस करनी है. इक्वेशन 1 x plus y is equals to 10. x की जगह आपको y plus 4 प्लेस करना है. y plus 4 plus y is equals to 10. y and y there are like terms. अगर आपको like terms कहीं पर मिल रहे हैं तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. So y and y are like terms. y plus y you get 2y is equals to 10 minus 4. 2y is equals to 6. y is equals to 6 by 2 and you get the answer y is equals to 3. आपको यहाँ पर y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई y is equals to 3 and x is equals to y plus 4. अगर y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. x is equals to y की वैल्यू 3 आप पहले ही फाइंड कर चुके हो. यहाँ पर प्लेस करिए 3 plus 4. x is equals to 7. You get your answer x is equals to 7 and y is equals to 3. अब आप याद करिए जब भी आपने लेट किया था तो आपने लेट किया था the number of apples are x and number of oranges are y. So what you get? You get number of apples is equals to 7 and number of oranges are 3 and this is your final answer. तो अब बात आती है कि सर आपने यहाँ पर मेथड कौन सा अप्लाई किया. यहाँ देखिए x की वैल्यू आपने सबसे पहले y के टर्म में फाइंड की
और इस वैल्यू को आपने प्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1, यानी सब्स्टिट्यूट किया। सो दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आफ्टर दिस मेथड वी हैव टू डिस्कस ग्राफिकल मेथड। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। लेट्स टेक अ ग्राफ पेपर। आपको यहां पर टू टाइप्स की परपेंडिकुलर लाइंस दिखाई दे रही होंगी। द फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज वाई एक्सिस। तो बैक आ जाइए। देयर आर टू इक्वेशंस यू हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू ट्रांसपोज करिए। तो 10 माइनस वाई, देन आपको एक टेबल फॉर्म करनी है और उस टेबल में आपको y वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करनी है, x वेरिएबल की वैल्यू आएगी और वहीं से आपको मिलेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। सो फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू y एंड लास्ट कॉलम इज x, y। ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। टेक y एज 0। y अगर आप 0 लेट करेंगे तो 10 माइनस 0 x की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड यू विल गेट द योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 10, 0। 10, 0 इज योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, अब अगर यहां पर y की वैल्यू आप 4 लेट करें तो y की वैल्यू अगर आप 4 लेट करते हैं तो 10 माइनस 4 x की वैल्यू आपके पास 6, 4 आएगी और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 6, 4। थर्ड, अगर यहां पर y की वैल्यू आप 7 लेट करते हैं तो 10 माइनस 7 x की वैल्यू आ गई 3 एंड कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 3, 7। तो इस तरह से आपने ये 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही सेम प्रोसेस आपको इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी कवर अप करना है। सो व्हाट यू गेट इन इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये y प्लस 4 आएगी। यहां पर भी आप एक टेबल फॉर्म करिए। फर्स्ट वैल्यू टेक एज x, सेकेंड वैल्यू टेक एज y एंड लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट x, y। अगर आप यहां पर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू आएगी 4 एंड योर फर्स्ट पॉइंट इज 4, 0। 4, 0 इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर आप यहां पर y की वैल्यू 2 लेट करें तो y की वैल्यू अगर आप 2 लेट करेंगे 2 प्लस 4 x की वैल्यू हो जाएगी 6। x 6 होगा तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, 2। टेक द थर्ड वैल्यू। अगर आप यहां पर y की वैल्यू -1 लेट करेंगे, अगर आप y की वैल्यू -1 लेट करते हैं तो 4 माइनस 1 x की वैल्यू आपके पास आएगी 3। x की वैल्यू 3 आने से आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 3, -1। सो अब आपको दिखाई दे रहा होगा देयर आर 2 टेबल्स एंड यू हैव 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। वापस से आ जाइए अपने ग्राफ पेपर पे। तो आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से एंड ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं सेकंड इक्वेशन की हेल्प से। तो ग्राफ पेपर पर सबसे पहले आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट 10, 0, 10, 0 x एक्सिस पर 10, y एक्सिस पर 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट 6, 4 x एक्सिस पर 6 एंड y एक्सिस पर 4 यूनिट की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3, 7 x एक्सिस पर 3 यूनिट एंड y एक्सिस पर 7 यूनिट आपको ट्रेवल करना होगा। तो यहां से आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। अब आप इन 3 पॉइंट्स को मैच कर दीजिए। जैसे ही आप इन 3 पॉइंट्स को मैच करेंगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, रिमेंबर इट दैट कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां पर ऑलवेज आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। इसीलिए हमेशा 3 पॉइंट से ही ग्राफ फॉर्म करिएगा, कभी भी 2 पॉइंट से मत करिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से ऑलवेज आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा। सेम एज सेकंड इक्वेशन की हेल्प से जो 3 कोऑर्डिनेट्स थे उनका भी ग्राफ प्लॉट करिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 4, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 6, 2, थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3, -1। द 3 पॉइंट्स और इन 3 पॉइंट्स को जब आप मैच कर देंगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन अगेन। और आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर।
अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जरा आप गौर से देखिए। x is equals to 7 and y is equals to 3. You will get your answer. X is equals to 7 means number of apples is equals to 7 and y is equals to 3 means number of oranges is equals to 3. तो इस तरह आपने ग्राफिकल अप्रोच एंड अलजेब्रिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपने एक चीज नोटिस की कि आप ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करें या फिर अलजेब्रिकल अप्रोच से सॉल्व करें, यू गेट द सेम आंसर। वी विल सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द टू मेथड्स एंड यू गेट the same answer, and this is a unique solution, so it is possible, so you always get a unique solution। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिले? नो, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ एजुस्विच। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, so like, subscribe and share with your friends। EduSwitch, learning today, leading tomorrow, your online best learning platform।